Dear students, Assalamu alaikum. In our previous session, we discussed about prime ideal, nil radical of a ring, and certain other things. And remember that we worked with a commutative ring with identity. So let's recall the things we have already done. So in this session and in previous session as well, R was a ring with identity and a commutative ring. R is a commutative ring with identity. Secondly, recall that an ideal I is called prime ideal. Ideal I is prime ideal if and only if condition for prime ideal is if product of two elements belong to I, then one of them must belong to I. A belong to I or B belong to I. This is condition for prime ideal. We also defined nil radical of a ring. We denoted it by nil radical of ring R is equal to, this is set of those elements of ring R such that x raised to power n is equal to 0 element for some n greater than or equal to 1. So this is definition of nil radical. And then we proved that n factor nil radical of R does not contain non-zero nilpotent elements. Does not contain non-zero nilpotent elements. We proved this as a proposition. So this is what we have done in our previous session. In this session, we will discuss about semi-prime ideals and primary ideals. So in this session, we shall discuss semi-prime ideals, semi-prime ideals, and primary ideals. Before defining semi-prime ideal or primary ideal, we need certain concepts. So let's have few definition and few results. So first of all, let's define nil radical of an ideal of a commutative ring with identity. So let's have definition. This is definition of a nil radical of an ideal.
So definition goes as follows. Let R be a commutative ring with identity. Let R be a commutative ring with identity, and let I be an ideal of R. Then we define then we define this is the symbol for nil radical of I. Some books just say radical of I. If you like, you can call it a radical of I or nil radical of I. Nil radical of this ideal I is defined as this is set of those elements of the ring R such that some power of X belongs to I. This n must be greater than or equal to 1. So this is definition of nil radical of a given ideal. So this particular ideal, this particular set in fact, is called nil radical of ideal I. Let's note that we have defined that nil radical of ideal I is equal to set of those elements of the ring R for which x raised to power n belongs to I for some n greater than or equal to 1. So this is our definition. Note that if x raised to power n belong to I, then x raised to power n plus I should be equal to I. If x raised to power n belongs to I, then coset of x raised to power n with I should be equal to I. So we can write it. So this is equal to x belonging to R such that x raised to power n belong to I means x raised to power n plus I is equal to I, such that x raised to power n plus I is equal to I for some n greater than or equal to 1. And this is equal to set of those elements of this ring R such that x plus I raised to power n is equal to I. You very well understand this particular reason behind this particular step. X plus I raised to power n is equal to I for some n greater than or equal to 1, and this is equal to, these are those elements of the ring R which are nilpotent elements in R factor I, such that x plus I is nilpotent in R factor I. तो इस बात को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि nil radical of a given ideal is equal to set of those elements of the ring R for which
left cosets are nilpotent elements in the corresponding quotient ring. Let's have one more note, and that note says that we just recall the definition of nil radical of the ring R. Nil radical of the ring R. अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप आसानी से ये देख सकेंगे कि नील रेडिकल ऑफ अ रिंग आर इज इक्वल टू नील रेडिकल ऑफ ज़ीरो आइडियल. नील रेडिकल ऑफ ज़ीरो आइडियल. सिर्फ डेफिनेशन को देखिए, आपको बड़ी आसानी से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि नील रेडिकल ऑफ द रिंग आर इज इक्वल टू नील रेडिकल ऑफ ज़ीरो आइडियल और रेडिकल ऑफ ज़ीरो आइडियल. Let's have proposition. Let R be a commutative ring with identity. So let R be a commutative ring with identity, and let I be an ideal of R. And let I be an ideal of R. Then nil radical of this particular ideal I is also an ideal of ring R. So far, and there is one more condition also. Ideal I is subset of nil radical of I. Ideal I is contained in its nil radical. So for proof, मैं मुकम्मल प्रूफ नहीं लिख रहा कि मुकम्मल प्रूफ लिखने से आपको लगेगा कि मैंने वही प्रूफ रिपीट कर दिए है जो हमने लास्ट टाइम हमने दिया था, ये प्रूव करने के लिए कि नील रेडिकल ऑफ अ रिंग इज़ आल्सो एन आइडियल ऑफ द रिंग. सो नील रेडिकल ऑफ एन आइडियल इज़ आल्सो एन आइडियल ऑफ द रिंग. इसका प्रूफ एग्जैक्टली उसी तरह से है जैसे हमने नील रेडिकल को रिंग का आइडियल प्रूव करने के लिए हमने जो दिया था. थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप गौर करें दिस इज़ द सेम प्रूफ. तो उसी प्रूफ को आप बहुत आसानी से मॉडिफाई करके इस प्रोपोजिशन के प्रूफ की शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर यू टू लर्न मैथमेटिक्स. So as far as proof is concerned, I'm not going to in details. I'm simply going to write hint. So the proof for this particular proposition is just follow the proof given in previous session. For proving that NR is ideal of R with little modifications. With little modifications. बहुत कम मॉडिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी. वही प्रूफ अगर आप एग्जैक्टली लेके थोड़ा सा गौर करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दैट इज़ द सेम प्रूफ विच इज़ फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोपोजिशन एज वेल. Secondly, we have to see that I is subset of nil radical of I. To see that
I is subset of nil radical of I. आप यूं कीजिएगा, I का एक एलिमेंट ले लीजिए, लेट A बिलोंग टू I. Then if A belong to I, then we can see that A belong to I can be written as A raised to power 1 belong to I. अब आप नील रेडिकल की डेफिनेशन देख लीजिए कि नील रेडिकल डेफिनेशन, इस रिंग आर के वो एलिमेंट्स हैं जिनकी कोई ना कोई पावर आइडियल को बिलोंग करती हो. तो यहाँ देखिए, ए अगर आई का एलिमेंट है तो ए की 1 पावर आई को बिलोंग करती है. तो देयरफॉर ए बिलोंग्स टू radical of I or nil radical of I, and therefore every ideal is subset of its nil radical. I जो है वो I के nil radical का सबसेट है. तो ये रिजल्ट काफ़ी यूज़ होता है, जस्ट नोट इट फॉर फ्यूचर यूज़. Let's have another definition. So this is going to be definition for semi-prime ideal. This is definition for semi-prime ideal. So let R be a commutative ring with identity. Commutative ring with identity, then an ideal. Then an ideal. I of R is called semi-prime ideal. I of R is called semi-prime ideal if कंडीशन ये है कि इस आइडियल को अपने नील रेडिकल के बराबर होना चाहिए. अगर कोई आइडियल अपने नील रेडिकल के बराबर हो तो दैट आइडियल इज कॉल्ड सेमी प्राइम आइडियल. लेट्स हैव अ प्रोपोजिशन. So let me emphasize that an ideal is semi-prime ideal if that ideal is equal to its nil radical. So the proposition says that let R be a commutative ring with identity. Let R be a commutative ring with identity. Then an ideal I is semi-prime ideal if and only if then an ideal I is semi-prime ideal if and only if, this is the condition, A raised to power n belongs to I implies that
A belongs to I, where n is greater than or equal to 1. तो किसी आइडियल के सेमी प्राइम आइडियल होने की कंडीशन ये है कि अगर ए की कोई पावर n 1 ग्रेटर देन 1, अगर ए की 1 या 1 से बड़ी कोई पावर आइडियल को बिलोंग करे तो फिर ए जो है ये आइडियल को बिलोंग करेगा. सो लेट्स सी द प्रूफ. So one way round. Suppose that I is semi-prime ideal. Suppose that I is semi-prime ideal. So I will suppose that we have to prove that if A raised to power n belong to I, then A belong to I. So हम ऐसे करते हैं कि हम A raised to power n belonging to I ले लेते हैं, where n is greater than or equal to 1. हम प्रूव करेंगे कि A जो है वो आइडियल I को बिलोंग करता है. अब देखो बाय डेफिनेशन नील रेडिकल की डेफिनेशन से नील रेडिकल ऑफ I जो है वो बराबर होता है ये रिंग R के वो एलिमेंट्स हैं जिनकी कोई ना कोई 1 या 1 से बड़ी पावर जो है वो आइडियल को बिलोंग करती है. दिस इज फॉर सम n greater than or equal to 1. So this is definition of nil radical of ideal I, and therefore अब नोट कीजिए कि a की पावर n I को बिलोंग करती है. अगर x की पावर n I को बिलोंग करे तो फिर x जो है वो नील रेडिकल को बिलोंग करता है. अब a की पावर n चूँकि I को बिलोंग करती है इसलिए a जो है ये नील रेडिकल ऑफ I को बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू नील रेडिकल ऑफ I. दिस इज व्हाट डेफिनेशन सेज. तो हमने ये बात पे प्रूव कर दी है कि अगर a रेज टू पावर n I को बिलोंग करे तो फिर a जो है वो I को बिलोंग करेगा. दिस जस्ट बाय डेफिनेशन. वो बहुत सिंपल सी चीज़ है. वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. दिस इज जस्ट बाय डेफिनेशन. एंड ऑन द अदर वे अराउंड आप सपोज कर लीजिए कि दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. सो सपोज दैट a raised to power n belonging to I implies that a belong to I where n is greater than or equal to 1. Suppose this condition holds. We shall prove that I is semi-prime. We shall prove that I is semi-prime. मैं रिकॉल कर दूं कि किसी आइडियल के सेमी प्राइम होने के माने ये हैं कि वो आइडियल अपने रेडिकल के बराबर है. सो I इज़ इक्वल टू रेडिकल ऑफ I, देन I इज़ कॉल्ड सेमी प्राइम. और ये बात आप याद रखिए, ये बात हम प्रूव कर चुके हैं कि आइडियल हमेशा अपने नील रेडिकल का सबसेट होता है. अब इस आइडियल I को सेमी प्राइम प्रूव करने के लिए हमने प्रूव करना है कि I इज़ इक्वल टू नील रेडिकल ऑफ I, और I सबसेट ऑफ नील रेडिकल ऑफ I तो वैसे ही हम जानते हैं, ये हमने पीछे इस बात को नोट कर रखा है. हमें सिर्फ इतना प्रूव करना है कि नील रेडिकल ऑफ I इज सबसेट ऑफ I. सो फॉर दिस पर्पज वी टेक एन एलिमेंट ऑफ नील रेडिकल ऑफ I. सो लेट x belongs to नील रेडिकल ऑफ I.
अब नील रेडिकल ऑफ आई को बिलोंग करने की कंडीशन आप जानते हैं कि कोई एलिमेंट जो है वो नील रेडिकल को बिलोंग करेगा अगर उसकी कोई ना कोई पावर आई को बिलोंग करे. सो लेट एक्स बिलोंग्स टू नील रेडिकल ऑफ आई, देन एक्स की कोई ना कोई पावर, then x raised to power n belongs to I for some n greater than or equal to 1. So this is definition. So if x belongs to nil radical of I, then some power of x raised to power n must belong to I, and therefore अगर x की पावर n को बिलोंग करती है तो फिर x जो है, अगर x की पावर n I को बिलोंग करती है तो फिर x जो है वो I को बिलोंग करेगा. अब देखिए इसकी वजह ये है बिकॉज हमें ये कंडीशन दी गई है बिकॉज कि अगर a की पावर n जो है वो I को बिलोंग करे तो फिर a जो है वो I को बिलोंग करेगा. ये जो गिवन कंडीशन है शुरू में उसकी वजह से. तो अगर x की पावर n I को बिलोंग करता है तो फिर x जो है वो I को बिलोंग करेगा. एंड देयरफॉर आप नोट कीजिए कि x जो है वो तो रेडिकल ऑफ I का एलिमेंट था, नील रेडिकल ऑफ I का, ये रेडिकल ऑफ I का एलिमेंट, तो देयरफॉर रेडिकल ऑफ I बिकम्स सबसेट ऑफ I. लेकिन वैसे हम जानते हैं कि I खुद भी रेडिकल ऑफ I का सबसेट होता है. therefore we have established that I जो है वो रेडिकल ऑफ I के बराबर है. तो अगर किसी आइडियल का नील रेडिकल उसी आइडियल के बराबर आ जाए then that ideal is semi prime ideal. therefore I is semi prime ideal. therefore I is semi prime ideal. So it was quite simple proof. Next we come to a proposition which says that let's write the proposition. It is going to be number 10. So let R be a commutative ring with identity. Commutative ring with identity. We have to prove that an ideal of R is semi-prime. Then an ideal I of R is semi-prime if and only if this quotient ring R factor I has no non-zero nilpotent element. इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है तो हमें पहले सपोज करना होगा कि अगर आइडियल आई जो है वो सेमी प्राइम हुआ तो इस आइडियल के करस्पॉन्डिंग जो कोशेंट रिंग है इसके अंदर कोई नॉन ज़ीरो नीलपोटेंट एलिमेंट नहीं होगा. फिर हमें सपोज करना होगा कि अगर इस कोशेंट रिंग आर फैक्टर आई में कोई नॉन ज़ीरो नीलपोटेंट एलिमेंट नहीं है तो फिर आइडियल आई जो है ये सेमी प्राइम आइडियल होगा. सो फॉर प्रूफ डायरेक्ट डायरेक्शन में सपोज कर लीजिए कि आई इज सेमी प्राइम. Suppose that I is semi-prime
a semi-prime ideal. So suppose that I is semi-prime. So if I is semi-prime, then by definition I will be equal to nil radical of I. This is definition of semi-prime ideal. We shall prove that R factor I has no non-zero nilpotent element. This is what we have to prove. ये प्रूफ जो है ना, ये हम कंट्राडिक्शन से करेंगे. हम सपोज कर लेंगे कि आर फैक्टर आई में नॉन ज़ीरो nilpotent एलिमेंट है, और देन वी विल अराइव एट अ कंट्राडिक्शन. ऑन कॉन्ट्रेरी, suppose that कि ये x प्लस आई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आर फैक्टर आई को बिलोंग करता है. ये नॉन ज़ीरो है. x प्लस आई इज़ नॉट इक्वल टू आई. आप जानते हैं ना, आर फैक्टर आई का ज़ीरो एलिमेंट आई होता है. तो हमने आर फैक्टर आई का एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले लिया है. इसे हम ज़रा नोट कर लेते हैं. कंट्राडिक्शन में इस चीज़ की मिला करती है. तो suppose that x plus I is an element of R factor I, which is a non-zero element, and suppose that x plus I जो है ये nilpotent एलिमेंट है, यानी इसकी कोई पावर n जो है वो I के बराबर आ जाती है for some n greater than or equal to 1. then x प्लस आई रेज टू पावर n आप जानते हैं इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस आई इज इक्वल टू आई फॉर सम n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. एंड देयरफॉर x रेज टू पावर n बिलोंग टू आई. आप जानते हैं कोसेट अगर किसी आइडियल के साथ कोसेट उसी आइडियल के बराबर हो, तो जिस एलिमेंट के साथ आपने कोसेट लिया होता है वो एलिमेंट फिर आइडियल को बिलोंग करता है. तो x रेज़्ड पावर n बिलोंग टू I फॉर सम n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एंड देयरफॉर x बिलोंग्स टू. अब नील रेडिकल की डेफिनेशन में आपको रिकॉल करवा दूँ. नील रेडिकल रिंग आर के वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कोई पावर आइडियल को बिलोंग करे. अब चूँकि x की पावर n आइडियल को बिलोंग करती है, इसलिए x जो है वो आइडियल आई के नील रेडिकल को बिलोंग करेगा. देयरफॉर x बिलोंग्स टू नील रेडिकल ऑफ आई. लेकिन हम ये बात जानते हैं कि रिंग आइडियल आई जो है वो सेमी प्राइम आइडियल है. सपोज दैट आई सेमी प्राइम, तो आई जो है वो रेडिकल ऑफ आई के बराबर है. सेमी प्राइम आइडियल की डेफिनेशन ये है. बट आई इज इक्वल टू रेडिकल ऑफ आई बिकॉज आई सेमी प्राइम आइडियल. तो देयरफॉर अगर x रेडिकल ऑफ आई को बिलोंग करता है तो फिर x जो है वो आई को बिलोंग करेगा. एंड देयरफॉर अगर x i को बिलोंग करता है तो फिर x का i के साथ कोसेट जो है वो फिर i ही के बराबर होगा. लेकिन अब देखिए ये कंट्राडिक्शन है, क्योंकि हमने तो x प्लस आई एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया था विच कंट्राडिक्ट्स 1. विच कंट्राडिक्ट्स 1. तो देयरफॉर हमारी जो सपोजिशन थी दैट इज़ नॉट करेक्ट. तो हमने सपोज ये किया था कि आर फैक्टर आई को एक nilpotent एलिमेंट बिलोंग करता है. तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज इनकरेक्ट. तो देयरफॉर आर फैक्टर आई हैज़ नो नॉन ज़ीरो nilpotent एलिमेंट. देयरफॉर
R factor I has no non-zero nilpotent element. तो ये बात हमने प्रूव कर दी कि अगर आइडियल आई जो है वो सेमी प्राइम आइडियल हो तो इस आइडियल से बनने वाली जो कोशेंट रिंग है उसके अंदर कोई नॉन ज़ीरो निलपोटेंट एलिमेंट नहीं होगा. एंड देन वी कम टू अदर वे अराउंड. Now suppose that अब फर्ज कीजिए कि ये जो कोशेंट रिंग आर फैक्टर आई है दिस डज नॉट कंटेन नॉन ज़ीरो निलपोटेंट एलिमेंट. Does not contain non-zero nilpotent element. So having supposed that, we shall prove that I is semi-prime ideal. We shall prove that I is semi-prime ideal. और किसी आइडियल को सेमी प्राइम प्रूव करने के लिए आपने प्रूव करना होता है कि वो आइडियल जो है अपनी निल रेडिकल के बराबर है. और ये बात आप जानते हैं कि हर आइडियल अपने रेडिकल का सबसेट होता है. आपने सिर्फ रेडिकल को उस आइडियल का सबसेट प्रूव करना होता है. दैट इज़ सफिशिएंट. सो फॉर दिस पर्पस लेट हम एक एलिमेंट एक्स ले लेते हैं जो कि रेडिकल ऑफ आई को बिलोंग करता है. So let x belongs to radical of I. Then अब रेडिकल ऑफ आई की डेफिनेशन देखिए. रेडिकल ऑफ आई जो है वो रिंग आर के वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कोई ना कोई पावर जो है वो आइडियल आई को बिलोंग करती है. सो इफ़ x बिलोंग्स टू रेडिकल ऑफ आई देन x रेज टू पावर n बिलोंग्स टू आई फॉर सम n greater than or equal to 1. So this is in fact definition of nil radical of an ideal. And therefore अब x रेज टू पावर n अगर आइडियल i में है तो x रेज टू पावर n के साथ आइडियल i का जो कोसेट है वो आइडियल i के बराबर होगा फॉर सम n greater than or equal to 1. And therefore x plus I raised to power n is equal to I for some n greater than or equal to 1. तो अब देखिए हमने x प्लस आई की पावर n को i के बराबर प्रूव कर दिया. और अब जानते हैं i इज़ ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर फैक्टर i and therefore x plus I is nilpotent in. Therefore x plus I is nilpotent in R factor I. तो हमने R फैक्टर I का एक निलपोटेंट एलिमेंट जो है ना वो तलाश कर लिया है. लेकिन हम जानते हैं कि R फैक्टर I डज नॉट कंटेन नॉन ज़ीरो निलपोटेंट एलिमेंट बट R factor I does not contain
non-zero nilpotent element. लेकिन अब ये नोट कीजिए कि x प्लस आई जो है वो आर फैक्टर आई का नीलपोटेंट एलिमेंट है, और जो चीज़ हमने सपोज कर रखी है वो ये है कि आर फैक्टर आई डज नॉट कंटेन नॉन ज़ीरो नीलपोटेंट एलिमेंट। अब ये अगर आर फैक्टर आई का नीलपोटेंट एलिमेंट है और आर फैक्टर आई जो है वो नॉन ज़ीरो नीलपोटेंट एलिमेंट को कंटेन नहीं करती, तो x प्लस आई जो है वो आर फैक्टर आई का नीलपोटेंट एलिमेंट तो तब हो सकता है जब x प्लस आई जो है ये ज़ीरो एलिमेंट हो। तो देयरफॉर x प्लस आई इज इक्वल टू आई। ये आर फैक्टर आई का नीलपोटेंट एलिमेंट है और आर फैक्टर आई में कोई नॉन ज़ीरो नीलपोटेंट एलिमेंट नहीं हो सकता, इसलिए x प्लस आई नॉन ज़ीरो नहीं हो सकता, तो फिर x प्लस आई को ज़ीरो होना चाहिए। देयरफॉर x प्लस आई इज इक्वल टू आई एंड देयरफॉर x बिलोंग्स टू आई। देयरफॉर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट x बिलोंग्स टू आई। अब आई को बिलोंग करने की कंडीशन आप जानते हैं, देयरफॉर x बिलोंग्स टू आई और एंड देयरफॉर x हमने एलिमेंट लिया था रेडिकल ऑफ आई का, नील रेडिकल ऑफ आई का एलिमेंट हमने x लिया था और हमने प्रूव कर दिया कि दिस एलिमेंट x बिलोंग्स टू आई। तो देयरफॉर नील रेडिकल ऑफ आई इज सबसेट ऑफ आई। देयरफॉर नील रेडिकल ऑफ आई इज सबसेट ऑफ आई। बट ये बात हम वैसे ही जानते हैं कि हर आइडियल जो है वो अपने नील रेडिकल का सबसेट होता है। आई इज सबसेट ऑफ नील रेडिकल एंड देयरफॉर आई एंड नील रेडिकल ऑफ आई आर इक्वल। देयरफॉर आई इज इक्वल टू नील रेडिकल ऑफ आई। और अगर किसी आइडियल कोई आइडियल आपने नील रेडिकल के बराबर हो तो दैट आइडियल इज सेमी प्राइम आइडियल। देयरफॉर आई इज सेमी प्राइम आइडियल। तो ये हमने अदर वे राउंड भी कंडीशन प्रूव कर दी। So let's have a corollary to this particular proposition. Corollary says that let R be a commutative ring with identity. Let R be a commutative ring with identity. Let I be a prime ideal of R. Let I be a prime ideal of R. So then I is semi prime. So for proof, आप नोट कर लीजिए हमने क्या प्रूव करना है। हमने प्रूव करना है कि हर प्राइम आइडियल सेमी प्राइम आइडियल होता है। एवरी प्राइम आइडियल इज सेमी प्राइम आइडियल। तो प्रूफ जो है वो डिपेंड करेगा एक प्रोपोजिशन जो हमने अपने प्रीवियस सेशन में प्रूव की थी। हमने प्रूव किया था कि अगर आपको कोई प्राइम आइडियल दे दिया जाए और उस प्राइम आइडियल के साथ आप रिंग से रिंग की कोशेंट रिंग बनाएं, फैक्टर रिंग बनाएं, तो वो फैक्टर रिंग जो है वो इंटीग्रल डोमेन होती है। वी हैव इस्टेब्लिश्ड दैट इन आवर प्रीवियस सेशन। सो सिंस आई इज प्राइम आइडियल,
since I is prime ideal, therefore अगर हम रिंग R को इस आइडियल I के साथ फैक्टर करें, दिस पर्टिकुलर रिंग इज इंटीग्रल डोमेन. So since I is prime ideal, therefore R factor I is an integral domain. इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, इंटीग्रल डोमेन में ज़ीरो डिवाइसेस नहीं होते, तो देयरफॉर R factor I cannot have zero devices. Cannot have zero devices in it. तो चूँकि R फैक्टर I जो है इंटीग्रल डोमेन है, इसलिए इसके अंदर ज़ीरो डिवाइसेस नहीं होंगे.